My channel. I am Dr. Suraya Shahin and today I will deal questions from June 2012. I have already dealt the questions, a few questions from June 2012 पेपर 3. मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक मैं डील कर चुकी थी. So now I start with question number 19. In the well-known poem To His Queen Mistress, the word queen means first option is shy, second is timid, third is voluptuous, and fourth is sensual. So the word queen means here actually shy, right? So the correct answer would be here shy. Next question is from the following list identify back formation, sulk, bulk, stock, poke, swindle, bundle. First option is sulk, bulk, stock, poke. Second is stock, poke, swindle, bundle. थर्ड इज सल्क, स्टोक, बंडल एंड फोर्थ इज बल्क, पोक, बंडल. एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक्चुअली एरर था जब यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था. तो इसमें क्या हुआ था, यूजीसी ने उस टाइम में इस क्वेश्चन के आंसर में सबको मार्क दिया गया था. सो इसमें आपको इसलिए इस क्वेश्चन में एरर था. सो यूजीसी हैज कंसिडर्ड ऑल द ऑप्शंस करेक्ट. इसमें सब क्वेश्चन को सब आंसर को करेक्ट जो भी आप आंसर लगाए आपको सब मार्क्स दिया गया इसमें. Next question is it blurs distinctions among literary, non-literary and cultural text, showing how all three intercirculate, share in and mutually constitute each other. What does it in this statement stand for? First option is Marxism, second is structuralism, third is formalism and fourth is new historicism. So your correct answer would be here new historicism. It blurs distinction among literary, non-literary and cultural text, showing all the three intercirculate. यानी तीनों जो है intercirculate है. यह कौन कहता है? न्यू हिस्टोरिसिज्म जो फिलोसफी है वो कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज for thou I have no idea what this occurred frosty is worth. It pleases me to stand in silence here. Fill in the blanks. First option is bar, second is barn, थर्ड इज एटिक एंड फोर्थ इज अ क्लब. सो यहाँ पे जो है व्हाट इज दिस अकर्ड फ्रॉस्टी डैश इज वर्थ, दैट इज आपको इसमें भरना क्या है तो यहाँ पे बार्न हो जाएगा. बार्न इज वर्थ. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट अ पार्टीशन नॉवेल. कौन इसमें पार्टीशन नॉवेल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज आज़ादी, सेकेंड इज टॉमस, third is clear light of the day and fourth is that long silence. So the correct answer would be here that long silence and this is written by Shashi Deshpande. यह partition novel नहीं है. Next question is of the following characters which one does not belong to a house for Mr. Vishwas. First option is Raghu, second is Ralph C, third is Dehuti and fourth is Tara. इसमें से आपका राल्फ सी नहीं है. मिस्टर हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में राल्फ सी नहीं है. सो योर करेक्ट आंसर वुड बी हियर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंग्लिश लिटरेचर द ट्रॉप ऑफ वेम्पायर वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मैथ्यू ग्रेगरी, सेकेंड इज जॉन पॉलिडोरी, थर्ड इज जॉन स्टैग एंड फोर्थ इज ब्रैम स्ट्रोकर. सो इट वॉज जॉन स्टैग. इट वॉज इंस्टीट्यूट बाय vampire. Drop of vampire was first time used by John Stagg. So the correct answer would be here C. Next question is why is universal grammar so called? First option is it is a set of basic grammatical principles universally followed and easily recognized by people. Second option is it is a set of basic grammatical principles assumed to be fundamental to all natural languages. Third is it is a set of advanced grammatical principles assumed to be fundamental to all natural languages. Fourth is it is a set of universally respected practices that have come in time to be known as grammar. So your correct answer would be here it is a set of basic grammatical principles assumed to be fundamental to all natural languages. So that's why it is called universal grammar. Next question is here identify the novel with the wrong subtitle listed below. यानी इसमें से कौन सा ऐसा नॉवेल है जिसका सबटाइटल या रॉन्ग है.
First option is Middlemarch, a study of provincial life. Second option is a taste of the Urberville. 2 मिनट वेट करो यार, जो कट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नॉवेल विद द रॉन्ग subtitle listed below. First option is Middlemarch, a study of provincial life. Second option is Tales of the Urbervilles, a pure woman. Third option is The Mayor of Casterbridge, a man of character. And the fourth option is Felix Holt, the sociolist. So यहाँ पर wrong subtitle किसका है? तो Middlemarch का सही है, Tales of the Urberville का भी सही है, Mayor of the Casterbridge का भी subtitle सही है, Felix Holt, the sociolist. This is the wrong subtitle. So the correct answer would be here. D. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. आपको आंसर करना है, मैच करना है. तो डेविड मैलोफ, पैट्रिक वाइट, पीटर कैरी एंड कॉलिन जॉनसन. यहाँ पर इनका वॉक है, इसमें से कौन किसने वॉक लिखा है? सो यहाँ पर आपको एक्चुअली डेविड मैलोफ जो है वह वाइल्ड कैट फेमिंग लिखा है. एंड पैट्रिक वाइट, राइट, पैट्रिक वाइट जो है वह ये सॉलिड मंडाला लिखा है. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपका कैरेक्टर जा रहा है. ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी में करेक्ट जा रहा है. आई मीन डेविड मालूफ आपका सी, रिमेम्बरिंग बेबीलोन. एंड 2 का ए हो जाएगा पैट्रिक वाइट, द सॉलिड मंडाला. उसी तरह से आपका 3 का डी हो जाएगा पीटर कैरी, ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग. और आपका 4 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि कॉलिन जॉनसन का वाइल्ड कैट फॉलिंग हो जाएगा. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हियर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपनिंग सेंटेंसेस ऑफ Tolstoy's Anna Karenina. Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. The specific cause of the unhappiness is Oblonsky's house was the husband's affair with. First option is a kitchen maid. Second is an English governess. Third is a French governess. And fourth is a socialist. सो लियो टॉल्स्टॉय की जो नॉवेल है अन्ना कैरेनिना, काफ़ी क्लासिकल नॉवेल है. आई थिंक एवरीवन शुड रीड दिस नॉवेल. और इसमें जो ये ऊपर ये ओपनिंग लाइन जो लिखा हुआ है, यह अनहैप्पीनेस इज ओबलेंस्कीज हाउस वाज द हस्बैंड्स अफेयर विथ. किसके साथ उसका अफेयर था? तो अ फ्रेंच गवर्नेस के साथ अफेयर था. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हियर सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. दिस पीरियडिकल हैड द avowed intention to enliven morality with wit and to temper wit with morality, to bring philosophy out of the closets and library, schools and colleges, to dwell in clubs and assembles at tea tables and coffee house. So the periodical under reference is, यह किस यानी कि पीरियडिकल के रेफरेंस में यह लिखा गया है? सो इट वाज स्पेक्टेटर and it was written by addition. So the correct answer would be here spectator. Next question is here Tam यह assertion reason है. Tam O'Shanter by John Clare is about the experience of an ordinary human being and became quite popular during that time. Reason जो है John Clare having suffered bouts of madness would really feel for the misery of common men. तो इसमें असर्शन रीज़न आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, कौन ट्रू है और असर्शन सही है या नहीं है. सो नेक्स्ट आपका इसका हो जाएगा एक्चुअली दोनों इसका सही है, असर्शन और रीज़न, बट आर डजंट एक्सप्लेन ए. जॉन क्लेयर हैविंग सफर्ड बाउट्स ऑफ मैडनेस, यह इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है. तो योर करेक्ट आंसर वुड बी हियर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर Alexander Pope's an essay on criticism. First option is purports to define wit and nature as they apply to literature of his age. Second option is claims no originality in the thought that governs this work. Third option is a prose essay that gives us such quotes as little knowledge is a dangerous thing. And fourth option is appeared in 1701. तो एक्चुअली अलेक्जेंडर पोप एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म यह
तो इट अपियर्ड इन 1711, परपोर्ट्स टू डिफाइन विट एंड नेचर। तो यह आपका जो है इसमें जो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, यह ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट नहीं बैठ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसलिए आपको इसमें भी यूजीसी ने सबको मार्क्स दिया था, इसलिए। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये आपका जो है अलेक्जेंडर पोप का एनएसए ऑन क्रिटिसिज्म, इसमें आपको उसने सबको मार्क्स दिया गया था क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आपका जो ऑप्शन दिया गया था वो इनकरेक्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। व्हाट इज रजिस्टर? फर्स्ट ऑप्शन इज द वे इन विच अ लैंग्वेज रजिस्टर्स इन द माइंड ऑफ इट्स यूजर्स। सेकेंड, द वे यूजर्स ऑफ अ लैंग्वेज रजिस्टर द नुएंसेस ऑफ दैट लैंग्वेज। थर्ड, अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन सोशल सिचुएशंस और वन is especially designed for the subject it deals with. Fourth, a variety of language used in non-professional or informal situation by professional. तो एक्चुअली जो रजिस्टर है अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है यूज्ड इन सोशल सिचुएशन और वन स्पेशली डिजाइन फॉर द सब्जेक्ट इट डील्स विथ। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी हियर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Jeremy Collier's short view of the immortality and profaneness of the English stage attack. किसको अटैक किया है? फर्स्ट ऑप्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ मिक्सिंग ट्रेजिक एंड कॉमिक थीम्स इन शेक्सपियर्स प्लेस। सेकेंड ऑप्शन इज द बॉडीनेस ऑफ लो कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्लेस। थर्ड, द क्वेयरनेस एंड अगलीनेस ऑफ रेस्टोरेशन थिएटर। एंड फोर्थ ऑप्शन इज irreligious themes and irrelevant attitudes in the play of the 17th century. एक्चुअली यह अटैक किया था द क्वेयरनेस एंड अगलीनेस ऑफ रेस्टोरेशन थिएटर को। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हेयर सी। जेरेमी कोलियर जो है शॉर्ट व्यू ऑफ द इमॉर्टैलिटी के थ्रू अगलीनेस ऑफ रेस्टोरेशन थिएटर को अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर one of the most important themes the speakers debate in Dryden's and essay on dramatic poesy is. First option is European and non-English perceptions of reality. Second, English and non-English perceptions of reality. The third, the relative merits of French and English theatre. And fourth is the relative merits of French and English poetry. So actually जो ड्राइडन डिबेट इन ड्राइडेंस essay और ड्रामेटिक पोएजी में जो है वह स्पीकर्स किस पे करते हैं? वह द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश थिएटर। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हियर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यह मैच पेयर है अमिताभ घोष, अनीता देसाई, शशि देशपांडे, सलमान रश्दी, इसमें इसका वर्क है। सो इसमें इस वर्क है तो सलमान रश्दी ने ऑल अबाउट हैटर किसने लिखा था? जीवी देसाई ने। इनहेरिटेंस लॉस किरण देसाई। और आपका इसमें करेक्टली मैच जो देना है वो है। सो आपका इसका आंसर जो होगा वो एक्चुअली डी होगा। द सलमान रश्दी। द इंचेंटर ऑफ फ्लोरेंस इज द करेक्ट पेयर। अदर करेक्ट पेयर्स आर ऑल अबाउट हैटर जीवी देसाई, इनहेरिटेंस लॉस किरण देसाई और बेंटिंस गंगेस मनोहर मंगोलकर। राइट, तो आपका सलमान रश्दी ने ये लिखा है इसलिए आपका ये आंसर होगा 36 का। नेक्स्ट आपका मैच है लैंग पैरल कंपेटेंस परफॉर्मेंस आइकन इंडेक्स रीडर राइटरली। तो इसमें आपका ये दिया हो गया है थियरिस्ट का नाम, कौन किसने लिखा है। तो इसमें आपका जो है लैंग एंड पैरल या फर्डिनांड सोस्योर ने लिखा था। राइट, ये इसमें देखिए बी। फिर 2 का ए कंपेटेंस परफॉर्मेंस डोम चोम्स्की ने थियरी दिया था। आइकन एंड इंडेक्स यह किसने दिया था? CS पियर्स ने दिया था। रीडरली राइटर ने किसने दिया था? रोनाल्ड बार्था ने दिया था। तो आपका इस हिसाब से करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जॉन कोगेवा, MG वसंजी, स्काई ली, अर्नॉल्ड इटवारू, और इनका ये वर्क है, इसे मैच करना है। तो इसमें जो है यह द गन्नी सैक, राइट, द गन्नी सैक जो है यह MG वसंजी ने लिखा है। राइट, तो हम जा रहे हैं इस पे, ये इसके तरफ करेक्ट जाएगा, यानी कि जो कोगवा जो है वह ओबासान एंड MG वसंजी का गन्नी सैक है, और स्काई ली डिसअपियरिंग मून कैफे एंड अर्नॉल्ड इटवारो बॉडी राइट्स। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हियर सी।
Question number 39. Why does Jean Baudrillard adopt Disneyland as his own sign? Disneyland is by far the most eminently noticeable cultural sign in the postmodern world. Disneyland captures essence and non-essence of reality more convincingly than other cultural venues. Third option is Disneyland is an artifact that so obviously announces its own fictiveness that it would seem to imply some counterbalancing reality. And fourth option is Disneyland is both appearance and reality in the postmodern visual game of handy. तो एक्चुअली आपका इसमें करेक्ट आंसर जो है वह आपका ये होगा. डिज्नीलैंड इज एन आर्टिफैक्ट दैट ऑब्वियसली अनाउंसेस इट्स फिक्टिवनेस दैट इट वुड सीम टू इम्प्लाई सम काउंटर बैलेंसिंग रियलिटी. तो इसमें आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं. Which of the following statements is not true of Dante Gabriel Rossetti? First option is Dizzy Rossetti was a Londoner, the son of an Italian refugee who taught Italian at King's College. Second is Rossetti framed the pre-Raphaelite brotherhood with whom Hunt, Ford Maddox, Brown and Painter Méliès. Third, he married Christina Georgia, who was a poet in her right. Fourth option is Rossetti's blessed mother displays his remarkable gift as a poet and painter. So यहाँ इसमें कह रहा है नॉट ट्रू. तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है. सेकेंड भी आपका ट्रू है, फाउंड द प्री-रेफेलाइट. थर्ड, ही मैरिड क्रिस्टीना जॉर्जिया. दिस इज नॉट ट्रू. सो ये करेक्ट आंसर वुड बी हियर सी. राइट. So thank for today.